EPF ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. 2017ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು PF ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆಯದ ಅಂಥ ನೌಕರರನ್ನು EPFO ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲಾತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹100 ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಭರಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೌಕರರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೌಕರರನ್ನು PF ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 16 ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು EPFO ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂನೆ 5ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ PM ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹1,00,000 ಒಳಗಿನ ವೇತನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ 1 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15,000 ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಕ 6 ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ವಾರ್ಷಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, PF ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲಿದಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ರೀಡ್ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣನ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಸಲಾಂ ಎಂ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು मदन कुलकर्णी इधर इसको किसी की ज़रूरत नहीं है. मतलब आइडेंटिफिकेशन पहले हम क्या करते थे, एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन मांगते थे, एम्प्लॉयर क्लेम भेजते थे. ये सब हमको नहीं चाहिए. अब एक बार एक फेस आइडेंटिफिकेशन से अप्रूव हो गया तो सभी लोगों को हम विनती करते हैं कि जो उमंग ऐप है, गवर्नमेंट का एक उमंग ऐप है, उसमें से आपको ये एक्टिवेशन फेस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. वहाँ खाली आपका आधार नंबर और आधार लिंक्ड मोबाइल डिटेल्स होना चाहिए. उसके साथ आप फेस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. इससे बहुत सारे फ़ायदा है. पहले आपको जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसका मैसेज आएगा. आपको जो भी एडवांस हो या विथड्रॉयल हो, सेटलमेंट हो, जो भी क्लेम करना है वो आसानी से कर पाएंगे. आपको अकाउंट में अगर पैसे भर रहे तो उसका भी इंफॉर्मेशन है, सब आपको खुद मिल जाएगा. किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए सभी एम्प्लॉइज अपना अपना यूएएन को एक्टिवेट करना. यूएएन तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं एलाबरेट नहीं कर रहा हूँ. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 डिजिट नंबर है जिससे हम कहाँ भी कितने भी सर्विस करें ये सब जुड़ जाते हैं यूएएन में. इसके बाद एम्प्लॉयर की तरफ से मैं
एम्प्लॉयर्स को एक विनती करना चाहता हूँ कि सारे एम्प्लॉयर्स जो भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ये सब लोग अपना KYC मतलब पैन नंबर, GSTN नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब क्लियरली चेक करके अगर कोई करेक्ट करना है तो करना है, क्योंकि हम जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी नया स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जब वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम में किसी ने किया होगा, उसी का मोबाइल है, उसी का ईमेल है, इसलिए जो भी हम मैसेज डाल रहे हैं या SMS भेज रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं वो उनको नहीं पहुंच रहे हैं। अभी हम रिसेंटली 2 न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस की तरफ से सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जब हमारे स्टाफ फ़ोन कर रहे हैं तो हमको पता लग रहा है कि ये फ़ोन किसी दूसरे आदमी का है, उसका और एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो एम्प्लॉयर इज़ मिसिंग आउट ऑन दिस। इसलिए हम एम्प्लॉयर से ये विनती करते हैं कि सभी लोग अपना अपना करेक्ट डिटेल्स दर्ज करें और एक रिटर्न है फॉर्म 5A, दिस इज कॉल्ड ओनरशिप डिटेल। ये ओनरशिप डिटेल जरूरी है। बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जानते हैं इसके बारे में, मगर बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्रोपरेटर्स है, पार्टनर्स है, उनको अधिक जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसलिए फॉर्म 5A दर्ज करना भी जरूरी है। अब हम जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ये सब ऑनलाइन हो चुका है EPFO की तरफ से, तो ये फॉर्म 5 देने से क्या होता है कि एक डिजिटल सिग्नेचर सबमिट करने के लिए आसान बन जाता है। अब डिजिटल सिग्नेचर को भी हम छोड़ के E-साइन पे आ गए हैं। सभी लोगों को आधार है, ऑल एम्प्लॉयर्स आर रिक्वेस्टेड टू गो फॉर E-साइन, इट इज़ व्हाट यू कॉल कॉस्ट इफेक्टिव। आपको कुछ ही पैसे भरने की भी ज़रूरत नहीं है या हर 2 साल को उसको रिन्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। E-साइन करने से आधार से लिंक्ड मोबाइल को OTP आ जाता है, OTP आप दर्ज करिए तो क्लेम भी भेज सकते हैं या जॉइंट डिक्लेरेशन भी सबमिट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट EPFO को अपनी पोर्टल की तरफ से आसानी से दर्ज कर सकता है। ये 2 चीज़, छोटे चीज़ जैसे फॉर्म 5A सबमिशन और E-साइन आइडेंटिफिकेशन करने से, ये मेरा विनती है एम्प्लॉयर्स के लिए। थोड़ा ये 2 बात आप विस्तार रूप से प्रस्तुत कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अब हम यहाँ उपस्थित हुए कि नए पहले और एक बात है, ये पेंशनर्स है, आप लोग तो आते वक्त तो देखे होंगे, बहुत सारे पेंशनर्स यहाँ बैठे हैं वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। ये एक डिजिटल रिवोल्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, EPFO ने भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि हम अब कोई ऑफिस को या बैंक को जाके हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अगर किसी को इतना मोबाइल और डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो कोई भी उसकी फैमिली के आदमी या जान पहचान आदमी भी ये कर सकता है। इसके लिए हम विस्तार रूप से कैंपेन भी लगा रहे हैं। अब गुलबर्गा में भी 2 कैंप रहेगा, उसका भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सब लोगों से आप बोल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि वो कैंप्स को अटेंड करके कैसे ये फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आप सब लोगों को हमने एक छोटा सा लीफलेट दिया है, उसमें विस्तार रूप से कैसे करना है वो बता दिया गया है। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ही बुजुर्ग लोग जो पेंशनर्स है, जो 60-70 ईयर्स के ऊपर है, वो लोग तकलीफ लेके ऑफिस तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे उन तक पहुँचने के लिए। उन लोगों को मन में होता है कि हमको PF ऑफिस को जाना है या बैंक को जाना है, जाके फिजिकली ये सबमिट करना है। एक ऐसा आ गया है, उसको चेंज करना थोड़ा टाइम लेता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपसे भी विनती है कि ये थोड़ा आप उनको पहुंचाने में मदद कीजिए। अब हम आएंगे आज की विषय पर। हम रिसेंटली 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना,
एक इंसेंटिव स्कीम है जो अभी अभी पढ़ के या कॉलेज कंप्लीट करके या आईटीआई से या पॉलिटेक्निक से जो भी आया है उसको एम्प्लॉयमेंट देने में एम्प्लॉयर को भी कुछ दिक्कत होती है, एम्प्लॉई को भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके काम करने में वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना में 1 अगस्त 25 से चालू किया है। इस पर 2 पार्ट होती है, पार्ट ए पार्ट बी कहते हैं। पार्ट ए में कोई भी एम्प्लॉई मतलब जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई 1 अगस्त 25 के बाद जो भी किसी भी फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में या शॉप में कहीं भी काम करने के लिए जाता है उसको पहले अपने यूएएन जनरेट करना पड़ता है। वो यूएएन जनरेट करने से ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट को जहाँ वो काम करता है वो लिंक हो जाता है। जहाँ भी वो जाए वहाँ कम से कम 6 महीने काम करने से उसको पहले इंस्टॉलमेंट एक इंसेंटिव क्या है कि अप टू 15,000 रुपये तक उसको इंसेंटिव मिलता है पहले एम्प्लॉयज़ के लिए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एक ऐसा बांट जाता है कि 2 हिस्सों में बांट जाता है। पहले पार्ट 6 महीने कंप्लीट करने के बाद ये 6 महीना उस एस्टेब्लिशमेंट में जरूरी काम करना जरूरी है। इसके बाद एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स दिया जाता है, उसकी पोर्टल में आ जाता है, वो 40 मिनट्स की होगी, उसमें वो देख के उसका 2-3 क्वेश्चंस होता है, उसका आंसर करने से फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट होता है। ये कोर्स कंप्लीट करना और 6 महीने मतलब 1 साल के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी अमाउंट है वो उसको एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट लाइक एफडी आरडी कुछ भी रूप में उसको 1 साल बाद लेने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इनको थोड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट में 6 महीने कम से कम काम करना और फाइनेंशियल लिटरेसी सेविंग के बारे में जानकारी होना, सोशल सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होना, ये उम्मीद है उनसे। जो नया कॉलेज से आता है उसको तो इतना जानकारी नहीं होता, इसलिए ये स्कीम ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है। और इसके अलावा एम्प्लॉयर को जो बेनिफिट आता है वो पार्ट बी है। एम्प्लॉयर्स जिसको एनरोल करते हैं वो सोचते हैं कि पहले विदाउट एनी एक्सपीरियंस किसी को हम ले लिए तो हमारा काम नहीं होता है, तो उसको अकाउंट में लेते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी एम्प्लॉयज़ को रखता है 6 महीने तक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को, उसको एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयर को बेनिफिट कैसे मिलता है कि हर एक एम्प्लॉई जो नया आया है 1 अगस्त के बाद जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है 6 महीने लगातार, उसके लिए हर एक एम्प्लॉई के लिए 1,000 तक उसकी सैलरी के डिपेंड पे ये इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव अप टू 3,000 विल बी गिवन। मैं जस्ट बताता हूँ आपको। उसका सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 के अंदर है समझिए, तो 10,000 के अंदर जो है वो 10% के हिसाब से मिलता है एम्प्लॉयर को पर एम्प्लॉई पर मंथ। अगर वो सैलरी 10,000 से 20,000 है तो 2,000 फ्लैट रेट मिलता है पर एम्प्लॉई पर मंथ।